Alright. So during हाँ बोलिए सर आज आप बोलने वाले थे कि वो स्फीयर और ओवल का डिफरेंस क्या था? sphere or oval, the difference is not related to the topic. So for the time, can you please concentrate on the topic, please? Thank you. So now today we will be dealing with some of the important theorems that are related to this topic. And the important theorem, the first theorem that we will be reading is equal chord of a circle subtend equal angle at the center. This theorem I guess we had done. But again we will do this theorem once again. So this theorem we have already done, but yes, we will do the theorem once again. So equal chord of a circle subtend equal angle at the center. So what we have to do, we have to prove basically angle AOB is equal to angle COD. And the thing that we are being given is AB is equal to CD and OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD. Why? Because these are the radius of the circles. So by SSS congruency criteria, the two triangles will be congruent to each other. And then by CPCT, I can say that angle AOB will be equal to angle COD. So this was the first theorem that we had done. This was the first theorem that we had done. Now we will move to the next theorem. Okay. हाँ बोलिए. The perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. This theorem is saying that if I draw a perpendicular from center of the circle to a chord, then according to this theorem, this perpendicular will bisect the chord. अब again bisection का केस हो या फिर एंगल इक्वल करने का केस हो, सीधी सी बात है, एक ही काम आपको करना है. यू हैव टू प्रूव टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट. बाइसेक्शन का केस हो, इक्वल एंगल्स का केस हो, लाइंस को कोलिनियर प्रूव कर, पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने का केस हो, ये जितने भी केसेस आते हैं सारी केसेस एक ही दवा है, पॉइंट्स को परपेंडिकुलर प्रूव करो. फॉर एग्जांपल वायरल हो या और कोई फीवर हो, हर चीज की एक ही दवा है, गर्म पानी. ठीक है, तो यहाँ पे एक ही दवा है, देयर इज ओनली वन मेडिसिन एंड द नेम ऑफ द मेडिसिन इज टू प्रूव द ट्रायंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट. नाउ हियर वी हैव टू प्रूव दैट AM इज इक्वल टू BM. हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि AM इज इक्वल टू BM. ठीक है, अब AM इक्वल टू BM हम कैसे प्रूव करेंगे? The only way to prove this AM is equal to BM is by proving triangle OMA is equal to triangle OMB. अब इन दोनों का अपन कैसे प्रूव करेंगे? देखो ध्यान से, OA is equal to OB. Why? Because this is radius. Angle OMA is equal to angle OMB. Why, sir? Because this angle is 90 degree. Further, OM is equal to OM. Why? Common है. इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि the two triangles are congruent to each other. Why? By RHS congruency criteria. RHS congruency criteria में right angle था, एक side था और एक hypotenuse था. While explaining that criteria also, I told you that this is going to be the Hardik Pandya of our question. So I can say that triangle OMA is congruent to triangle OMB. Now when this OMA is congruent to OMB, that means by CPCT I can say that AM is equal to MB. और यही हमें प्रूव करना था. This is what we were required to prove. So AM is equal to MB by CPCT. So thus we have read two theorems. First theorem was
First theorem was equal chords subtend equal angle at the center, and the second theorem is the perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. सर इसे हम एएस से भी प्रूव कर सकते हैं। एएस से कैसे करेगा बेटा, बता दीजिएगा। सर हाँ। जो ट्रायंगल OAB है सर, उसमें OA और OB इक्वल है बिकॉज वो सर सर्कल की रेडियस है, तो सर एंगल्स ऑपोजिट बोलो बोलो। इक्वल टू एंगल OBM and sir angle OMA and OMB are 90, so they are also equal, and Okay. sir OM is a common side. Okay, very good, very good. This is the thing. Very good. चलो, next is this theorem I am giving you as homework. खुद सोचो कैसे प्रूव किया। Just think yourself and explain me. तो अभी हम लोगों ने जो प्रूव किया था, अभी हम लोगों ने RHS congruency criteria से प्रूव किया था, but even this can be proved in one another way, and the way of proving this is like this. ये जो triangle है, triangle OAB, in this triangle OA is equal to OB, ये बात हमें पता है, and OA is equal to OB. Why OA is equal to OB? Because they both are the radius of OA. ठीक है। अब ट्रायंगल OAB में हम जानते हैं कि साइड इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो आई कैन से दिस एंगल 1 will be equal to angle 2. Further, in fact, this can be proved in one more way. I will tell you one more. तो यहाँ से एंगल 1 is equal to angle 2. This I know. ठीक है। दूसरी चीज जो हम यहाँ पे जानते हैं वो ये जानते हैं कि एंगल OMA is equal to angle OMB which is equal to 90. दूसरी चीज जो हम यहाँ पे जानते हैं वो ये जानते हैं कि एंगल OMA is equal to angle OMB which is equal to 90. And the third thing that I know is OM is equal to OM, which is the common side. So I can say by AAS congruency criteria, the two triangles are congruent. Therefore, हाँ बोलिए सर, ये ASA से भी हो जाएगा। एक मिनट इसको प्रूव करने का एक और तरीका, वेट करो। So by AAS congruency criteria, I can say that angle क्या था, triangle OMA is congruent to triangle OMB. Therefore, I can also say that AM is equal to MB. ये तो एक तरीका और। दूसरा तरीका एक और आया, अभी आया, जस्ट ताजा आया है, तो सुन लो उसको। ताजी हरी सब्जी है वो क्राइटेरिया। ये समझ में आ गया सबको? अब एक तरीका और है बेटा, एक ASA में तो ये होगा ना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो वो परपेंडिकुलर था वो ऊपर के एंगल का बाइसेक्टर होता है, इसीलिए हम उसे इक्वल प्रूव कर देंगे ऐसे ना। हाँ, मेरे को बोलने तो दो, एक मिनट बोलने तो दो, मैं वही बोल। दूसरा एक नया ताजा तरीका जो आया है मेरे पास, वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, जो हमने पढ़ा था। एक हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा था जब अपन ट्रायंगल्स वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। क्या था सर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वाज, अगर ये ट्रायंगल है, यहाँ पे एक दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ABC और अपन ये B था, तो हम बोलते थे BD अपॉन CD is equal to AB upon this AC. But that criteria perhaps will not work here. It will work. BD upon CD is equal to AB upon AC. और आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में BD upon CD, BD was equal to C. आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में BD was equal to C.
एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी हम लोगों ने आइसोसेलेस ट्रायंगल की, वो ये पढ़ी थी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर अपन ड्रॉप करते हैं टू द बेस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, it bisects the opposite angle. It bisects this angle. तो अब जब परपेंडिकुलर अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे आप एक और क्राइटेरिया लगा सकते हो, एंड द नेम ऑफ दैट क्राइटेरिया इज ASA, and the name of that criteria is ASA congruency criteria. In fact, you can also apply SAS. सर यहाँ पे SSS और SAS भी हो रहा है सर, यहाँ पे सारे क्राइटेरियंस राइट हो रहे हैं. You can also apply AS. RHS तो कर दिया, RHS हमने कर दिया, AAS आपके फ्रेंड ने बताया, ठीक है. SAS is also suggested by one of your friend, and ASA is also there. You can also apply ASA here. You can also apply SAS here. So basically ये तो होना ही था. If two triangles are congruent, that means you can apply any of the criteria by using simple logics. यहाँ पे हमें एक क्राइटेरिया मालूम था, उसके बाद हमने अपना थोड़ा सा दिमाग अप्लाई किया, और उसके बाद हमने ये देखा यहाँ पे सारे क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं, ठीक है. सो इन द एग्जाम you can do by any of the method. It is not going to be incorrect. एग्जाम में आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है. चलो आगे बढ़े. Keep thinking like this. This is very good. Now this is a theorem that I won't explain. I won't explain because this is somewhat a theoretical theorem. लेकिन इसमें एक बात याद रखना, इस थ्योरम को मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ के आना. इसको नहीं समझ में आएगा तो फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे. इस थ्योरम में बस एक बात याद रखना है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा. देखो एक पॉइंट है ये. अच्छा चलो, बिफोर एक्सप्लेनिंग यू आई वांट टू नो फ्रॉम यू, use your creativity to tell me what do you understand by perpendicular bisector. दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है A, एक मिनट रुक जा बेटा, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B. इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये रेखा है, और यहां से एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया. यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे पॉइंट लिया, यहाँ पे पॉइंट लिया, यहाँ पे पॉइंट लिया. What do I infer from this? इसका मतलब क्या हुआ? मुझे इसका प्रैक्टिकल मतलब नहीं समझ में आ रहा है. ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बहुत अच्छी बात है. What should I understand from this? Just tell me. हाँ बताओ. मैं यही बता रहा था कि वो जो आपने ऊपर से लाइन ड्रॉ की है जो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है सर, मतलब इसका मतलब अगर हम जो इंटरसेक्शन पॉइंट को ओ ले ले तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी भी हो जाएगा, और उसकी जो सारी एंगल्स बनेगी वो 90 डिग्री के इक्वल है. ओके नेक्स्ट. और कोई कुछ बताएगा सर? बताओ सर. मैं बोल रहा था कि सर ये हो सकता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब उसका आपने जो भी पॉइंट लिया सर. बोलो ओके सर. हाँ मैं बोला था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, हाँ सर मैं बोला था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में अगर आप जो भी पॉइंट ले, अगर उस पॉइंट से आप वो दो जो पॉइंट्स है वो आप देखोगे तो वो दोनों पॉइंट्स इक्वली होंगे, डिस्टेंस उन दोनों का इक्वली होगा. मतलब आपने यहाँ पे एक भी पॉइंट आपने जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लिया उसको आप कोई भी मार्क कर लो तो OC इज इक्वल्स टू BC ऐसा होगा. यहाँ पे मैं कोई भी पॉइंट अगर लेता हूँ से O, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, कहीं पे भी ले लूँ, और उस पॉइंट से अगर मैं A और B को ज्वाइन करता हूँ, so what I will have OA is equal to OB.
what I will have is OA is equal to OB. This is the meaning of perpendicular bisector. This is the meaning of perpendicular bisector. ठीक है, चलो अब इस थ्योरम को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं what this theorem is. The theorem is saying there is only one and only one circle passing through three given non-collinear points. तीन given non-collinear points से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्किल पास कर सकता है. ठीक है सर, देखते कैसे प्रूफ करते हैं. सबसे पहले क्या करो, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ना, ए बी और सी. ए से बी को ज्वाइन कर दो और बी से सी को ज्वाइन कर दो. आपने क्या किया, आपने ए से बी को ज्वाइन किया और आपने बी से सी को ज्वाइन किया. अब आपने क्या किया, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया. ठीक है सर. फिर आपने क्या किया, आर एस का मतलब आई मीन बीसी का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ. चूंकि ये दोनों लाइंस ए बी और बीसी पर पैरेलल नहीं है, therefore their perpendicular bisector will also not be parallel and their perpendicular bisector will intersect at any point. Let us say the point of intersection of the perpendicular bisectors PQ and RS is O. यहाँ तक कि मैंने ये बोला कि since AB and BC are not parallel lines, therefore their perpendicular bisectors will also be not a parallel line, और इन दोनों लाइंस का perpendicular bisector let it is intersecting at a point O. ठीक है, सिर्फ पैरेलल लाइंस ही कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, और चूंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों लाइंस का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इट विल इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट ओ. किसी एक पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मुझे नहीं पता कौन सा है. लेट इट इज इंटरसेक्टिंग. नाउ जैसा कि अभी हमने पिछले वाले उसको किया था, अब मैंने क्या किया, ओ से ए को ज्वाइन कर दिया, ओ से बी को ज्वाइन कर दिया और ओ से सी को ज्वाइन. व्हाट आई एम हैविंग इज OA is equal to OB. OA is equal to OB. ठीक है, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की डेफिनेशन ही होती है. Similarly, what I will have is OB is equal to OC. Similarly, what I will have is OA is equal to OB and OB is equal to OC. So thus I can say that OA is equal to OB is equal to OC. That means अब सर्किल की डेफिनेशन पे जो हमने पढ़ा था, हमने ये तो एस्टैब्लिश कर दिया कि OA is equal to OB is equal to OC. अब सर्किल की डेफिनेशन पे जाओ. Circle is the collection of all the points which are fixed distance from a given point, and the given point is called the center and the fixed distance is called the radius. अब किसी दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है बेटा, वो तो एक यूनिक चीज ही रहेगी ना. ए और ओ और ए के बीच का जो डिस्टेंस, अब एक बात बताओ मेरे को, ओ और ए के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट इट इज 5 यूनिट्स. सो दिस विल ऑलवेज रिमेन एज 5 यूनिट. यहाँ पे क्या कोई ऐसा दूसरा ए पॉसिबल है? क्या कोई दूसरा ए ओ ए डैश पॉसिबल है सच दैट ओ ए डैश इज इक्वल टू 5 यूनिट्स? ऐसा तो कुछ पॉसिबल है नहीं. सो इस that means there will only be a one circle which will pass through. There will only be a one collection of all the points such that the distance from O to that point will be same. ऐसा कोई दूसरा पॉइंट OA dash possible नहीं है in the plane such that OA is equal to OA dash. Fine. So I can say that the circle will be unique. Further, since our definition of circle is a collection of all the points
which are at a fixed distance from a given point, and since OA is equal to OB is equal to OC, therefore A, B and C lie on a circle whose center is O. This is how you have to prove this theorem. बेटा इस थ्योरम में आपको ये प्रूफ करना था कि किसी पॉइंट से देयर इज 3 पॉइंट से देयर इज ओनली वन सर्कल दैट कैन पास, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकता है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, उन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, उसके बाद आपने उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया एंड लेट अस अज्यूम दैट द बाइसेक्टर इज मीटिंग एट O. नाउ लेट अस रीविजिट द, अब उसके बाद आपने O से A को, B को और C को ज्वाइन कर दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की डेफिनेशन ये होती है कि एनी पॉइंट टेकन ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द 2 पॉइंट्स। सो since PQ is the perpendicular bisector of AB and O is any point on PQ, therefore this OA will be equal to EB. पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि since RS is the perpendicular bisector of BC and O is any point on RS, therefore OB is equal to OC. So from here, what I can say, OA is equal to OB is equal to OC. Now let us revisit the definition of the definition of circle. Circle was the collection of all the points which are at a fixed distance from a given point, and that the given point is called the center and the fixed distance is called the radius. Now since A, B and C are at a fixed distance from a given point O, therefore A, B and C are lying on a circle whose center is O and whose radius will be equal to OA or OB or AC. So this is how this theorem is to be proved. हेलो सर। हाँ बोलिए। तो सर इससे तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि सर्कल के अगर कोई भी 2 कॉर्ड है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ भी इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हमेशा सर्कल का सेंटर होगा। एग्जैक्ट। If there are 2 non-collinear points, in that case we won't be able to form the circle. If there are 2 non-collinear points, we won't be able to form the circle. Okay. So and further, in order to prove that the circles are unique, the circle is unique or there is only one circle possible, how we can analyze this is, since we know that दो lines का हमेशा एक ही point पे intersect करेंगी, the point of intersection of 2 lines is only one, therefore the perpendicular bisectors will only intersect at one point. Thus we can say that the circle, वो जो circle होगा, the center of the circle will be unique, क्योंकि अगर कोई और point होता तो वहां से जो distance होती वो unique नहीं होती, वो distance change हो जाती। So thus we will say that there is only one circle, that the circle passing through A, B and C is unique. So now that was a theoretical question that you were supposed to do. This proof can come in your exam, So that was the theoretical proof. Now there are some questions जो कि आप लोगों को करने हैं. The first question is in front of your computer screen and the time allotted for this question is just 30 seconds to start. Frequency से तो हो जाएगा, but मेरे को क्या कोई better method हो सकता है? Tell me that. I want to listen to you. I want to listen to that method. Can there be any better method for solving this question? Come on. I know I can prove it by congruency. ये इसके equal है, ये common है, ये radius है. SSS से हो जाएगा, ठीक है. But can there be any better method? Come on, tell me. नहीं, किसी को नहीं समझ में आ रहा है. चलो बताता हूँ सर बेटा. हाँ सर, हमें AB = BC दिया हुआ है ना.
सर 1 मिनट मैं 1 मिनट क्या, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूं। बेटा ऐसे देखो, अब इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकता दोस्त, सॉरी। एडी इज इक्वल टू बीसी दिया हुआ है ना। पहली थ्योरम जो हमने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। Equal chord subtend equal angle at the center. That means गड़बड़ है, ठीक है। Equal chord subtend equal angle at the center. That means this angle AOB will be equal to angle BOC. अब AOB is equal to BOC है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। SAS से दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, you will get your result. SAS से दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, you will get your result. Basically, I wanted to see whether if anybody of you is applying this thing or not, that equal chord subtend equal angle at the center. Basically, I wanted to know this. This can be proved by. आपने मना किया था। हाँ सर, मेरे को पता, आपने बोला नहीं देखो मैंने कॉन्फ्लुएंसी से मना किया था because I was thinking something else, लेकिन that is not going to work. मैं कुछ और सोच रहा था यहाँ पे, but it is not going to work. सर दो एंगल्स को इक्वल करके सर ऐसा नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था, वो छोड़ो, it's not going to work. सर ये कॉन्ग्रुएंसी के बिना भी प्रूव कर सकते हैं। How? Tell me. सर ये जो A और C को सर अगर ज्वाइन कर दे सर, कर दो सर फिर हमने वो थियरम तो पढ़ी थी ना सर, कि वो अभी इसके पहले की अगर वो एक सर्कल है जिसका कुछ सेंटर O होता है, तो अगर मतलब ये जो बी ओ मतलब अगर ये AC एक कॉर्ड है मान लेते हैं, तो जो उसका सेंटर से जो एक लाइन निकलेगी वो परपेंडिकुलर होगी, उसे बाइसेक्ट करेगी, तो हम बोल सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो फिर हम बोल सकते हैं कि अगर वो है, तो अगर वो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो एंगल ABO इज इक्वल्स टू एंगल CBO। आप ये कर सकते हो, लेकिन इसमें फिर एक झंझट है। यू हैव टू प्रूव दैट BO एंड OD आर इन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब ये इस तरीके से भी तो हो सकता है ना, एक ऐसे हो जाए, ऐसे। ये एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। तो लेकिन वो इक्वल कॉर्ड्स नहीं रहेगी ना फिर, AB और BC वो इक्वल। सोचा था, लेकिन फिर सर अगर हम लोग उसको ज्वाइन करेंगे तो फिर वो परपेंडिकुलर प्रूफ करना पड़ेगा। वो परपेंडिकुलर प्रूफ करना पड़ेगा, वो बेकार में झंझट हो जाएगा। मत करो वैसे, मत करो। हाँ, ज्योमेट्री में चलिए कि परपेंडिकुलर क्यों प्रूव करना पड़ेगा? वो तो थियरम है ही ना पहले से हमारे पास। नहीं, थ्योरम ये है, नहीं देखो, थ्योरम ये है कि अगर सेंटर से आप कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो तो इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, मान लिया आपने बोला कि सर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, या आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। चलो, अब आप ये D आ जाएगा। नाउ यू आर सेइंग दैट AD इज इक्वल टू CD। ओके, आप एक काम कर सकते हो, अगर AD इज इक्वल टू CD है, तो फ्रॉम हियर यू कैन से वन थिंग, बाय अप्लाइंग द कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यू कैन प्रूव दिस दैट दिस BD विल बी द एंगल बाइसेक्टर। मतलब मैं वही बोल रहा था, इसी तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं की। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो। व्हाट योर फ्रेंड इज सेइंग, listen to him very carefully. He has suggested a very beautiful thing. इन्होंने क्या बोला कि सर आप AC को ज्वाइन कर दो, कर दिया सर। अब इन्होंने क्या बोला कि सर आप O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो AC पे, कर दिया सर। लो, अब मैंने एक थ्योरम पढ़ी थी कि if a line drawn from center of the circle perpendicular to the chord bisects the chord, ठीक है, that means I know that AD is equal to CD. Now what I will do is I will look at the isosceles triangle ABC. Why I am saying isosceles triangle? क्योंकि ये मेरे को दिया हुआ है कि AB is equal to BC. This is already given to me that AB is equal to BC. एक थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जिसके कन्वर्स में ये था कि अगर परपेंडिकुलर, अगर इफ द
if the opposite side is bisected by, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है बेटा, प्रॉब्लम ये है कि ये जो नहीं, ठीक है कोई प्रॉब्लम. Now the theorem that we have read is if the opposite side is bisected by in an isosceles triangle, जो हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा था, ये AB divided by AC is equal to AD divided by CD. ये अपन ने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा था. The angle bisector divides the opposite side in the ratio of sides containing the angle. ये अपन ने पढ़ा था. परपेंडिकुलर और इसके केस में क्या होता था, आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में क्या होता था, since this is equal to 1, therefore AD is equal to CD. The same thing I can utilize here, the converse of this theorem I can utilize here. Since AD is equal to CD, that means I can say that this BOD is the angle bisector of angle ABC. I can utilize the converse of this theorem and I can prove this theorem like this question like that. This BOD is the angle bisector of angle ABC. So basically we are learning 2-3 methods of solving a particular question, and आपको जो भी मेथड समझ में आता हो एग्जाम में, you can apply that. आपको जो भी, हाँ बताओ. AB upon AC नहीं होना चाहिए, आपने AB upon BC. हाँ, AB upon BC, what that was a typing mistake. अब मैंने इसको रब कर दिया. हाँ बताओ. सर AC को जॉइंट, सर पहले AC को जॉइंट कर देंगे तो सर AB और BC इक्वल है, तो सर एंगल BAC और एंगल BC है वो इक्वल होंगे. एंगल BAC और हाँ ठीक है इक्वल होंगे. फिर सर AO और OC भी इक्वल है, तो सर एंगल OAC एंड OCA विल बी इक्वल. ठीक है सर फिर उन दोनों को पहले वाले में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस कर दो. हाँ तो सर हमें मिलेगा BAO इज इक्वल टू BCO. हाँ मिल गया. और फिर सर AB और BC इक्वल है, तो सर जो एक मिनट, BAO रुको BAO इज इक्वल टू BCO मिल गया, और OA और OB इक्वल है. सपोज दिस एंगल इज 1, so this angle will also be equal to 1. This angle is equal to 2. This angle will also be equal to 2. Now angle 1 is equal to angle 2. ये हम already prove कर चुके हैं. Therefore ये दोनों angles equal होंगे. Yes, this is also a method. See now see what your friend has done here. Now see what your friend has done. आपने तो सर ये बताया सर, लेकिन मैं तो और कुछ और ही सोच रहा हूँ. बेटा ज्यादा मेथड मत बता, नहीं तो आधी जनता कंफ्यूज हो जाए. इतने सारे मेथड्स डिस्कस करेंगे ना तो इवन आई विल गेट कंफ्यूज कि कितने सारे मेथड्स अपन अब दो एंगल को इक्वल बता के सर तीसरे एंगल को भी इक्वल बता सर. देखो जस्ट ट्राई टू लिसन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या किया इन्होंने बोला कि सर AB इज इक्वल टू BC है, बहुत अच्छी बात है. So can I say that this angle BAC is equal to angle BCA? ये कह सकता हूं मैं? हाँ कह सकता हूं, एकदम कह सकता हूं. Suppose further सर OA is equal to OC है, OA is equal to OC है. हाँ सर है. इसका मतलब can I say angle OAC is equal to angle OCA? Yes I can. Subtracting this is first, this is second. First minus second, what I will have, angle BAO is equal to angle BCO. ठीक है? Now further what I am having is angle BAO, but angle BAO was equal to angle OBA. ऐसा कैसे सर? क्योंकि सर OA और OB क्या है? इक्वल हैं. They are the radius of the circle. So angle BAO is equal to angle OBA. Further, sir,
एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। सो फ्रॉम हियर आई कैन से एंगल ABO is equal to angle OBC, or I can say OB is angle bisector of angle ABC. So basically what I want to say here is, my dear friends, don't limit yourself to whatever is written in your textbook. Don't limit yourself. किसी भी टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी इस क्वेश्चन के 3 मेथड्स नहीं मिलेंगे, या इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन के 4 मेथड नहीं मिलेंगे। एंड आई एम डैम श्योर अगर मैं आप लोगों को 10 मिनट का टाइम और दूं तो 1-2 मेथड कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के कोई और निकाल देगा, एंड दैट विल बी करेक्ट। The thing that I want to tell you, my dear friends, don't limit yourself. Why geometry is tough? Why out of 10, 9% or 8% feel that geometry is the toughest thing, and especially the 8th class geometry, the 9th class geometry is one of the toughest thing, because they limit themselves to whatever is being given in the textbook. टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन SAS congruency, suppose the question is solved by using SAS congruency criteria, so हम हमेशा SAS इसके अलावा हम कुछ सोचेंगे। जो पहली थ्योरम हम लोगों ने की थी, जो दूसरी वाली थ्योरम हम लोगों ने की थी, बुक में वो थ्योरम RHS congruency criteria से किया हुआ था। मैं गारंटी देता हूँ, ask someone who has not studied, who is not studied with us, and tell him that I have proved this theorem by AAS congruency criteria. First of all, he will say that you have done wrong. ऐसे नहीं कर सकते। And my dear friend, he will give you logic also. He will give you logic also. Try this and get me back. Try this and get back to me in the next class. अपने दोस्त से पूछो कि भाई ये थ्योरम तो मैं AAS से प्रूव किया है, बुक में तो RHS से दिया हुआ है, आई एम कंफ्यूज व्हाट टू डू, इज इट करेक्ट और नॉट। योर फ्रेंड विल से, पहली चीज तो वो आपको ये बताएगा कि बेटा ये तो AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होता ही नहीं है, जो मैंने आप लोगों को, जैसे द वे आई वाज ट्राइंग टू कंफ्यूज यू। पहली चीज तो वो आपकी बात ही नहीं मानेगा, बात ही नहीं सुनेगा। अगर उसने सुन लिया गलती, then he will not agree with you. Finally जब वो agree करेगा, but after a discussion of lot of time. चलो ठीक है, my job is not that, but what I am saying is don't limit yourself to something that is given in a question. Try to think beyond the question. चलो next question. Two circles with center A and B intersect at C and D respectively. I have to prove that angle ACB is equal to angle ADB. Now I have not given the figure in this question desperately because I want you to draw this figure, to analyze this question and then to solve. Your time starts now. चलो भाई, पास बताइए। ओके चलिए आप बताइए कैसे किया आपने, बताइए बेटा। सर मेथड हो सकती है सर। सर मैंने ये किया कि सर मैंने C और D को ज्वाइन कर दिया। C और D को ज्वाइन कर, अच्छी बात है। फिर एक मिनट सर। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। हाँ सर हो गया। सर इसने जैसे बोला C और D को ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद सर C और D को ज्वाइन कर देंगे,
फिर उसके बाद BC इज इक्वल टू BD, सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल BDC, क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है। फिर वेरी गुड। फिर मतलब फिर AC विल बी इक्वल टू AD, सो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC, सेम दोनों को आइसोसेलेस ऐड कर ट्रायंगल दो। की प्रॉपर्टी। हाँ, और दोनों का ऐड कर देंगे तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, आपका भी यही मेथड था? आप जो कंफ्यूज हो गए थे, हाँ, आपका सर। भी यही मेथड? चलो, और कोई मेथड? सर कॉन्ग्रुएंसी वाला बस। हाँ सर, ये Congruency। कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल्स। हाँ हाँ, सर, हो गए ना congruent। कॉन्ग्रुएंट। यस सर। देखो, मेथड सर नंबर SSS 1, से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मेथड नंबर 1 मेरा मेथड, ठीक है। फिर मेथड नंबर 2 आप लोग का मेथड। मेरा मेथड क्या है कि सर AC इज इक्वल टू AD, यस, एग्रीड। दूसरी बात यह है सर BC इज इक्वल टू BD, एग्रीड, एंड AB और इज सर इक्वल टू AB common। AB, which is SSS common. congruent। So by SSS, the two triangles are congruent. That means angle ACB is equal to angle ADB. क्यों सर? By CPC। ठीक है, ये हुआ मेरा मेथड। मेथड नंबर 2 जो आप लोगों ने बताया, मेथड नंबर 2 क्या है सर? कि आप C और D को ज्वाइन कर दिया सर। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, कर सकते। नाउ इन ट्रायंगल ACD, AC is equal to AD. That means angle ACD will be equal to angle ABC. ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। Similarly, BC is equal to BD. Therefore, angle BCD is equal to angle BDC. अब दोनों को ऐड कर दो सर, फर्स्ट सेकेंड दोनों को ऐड कर दो, तो व्हाट आई विल हैव, एंगल ACD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ADC प्लस एंगल BDC, और व्हाट आई एम हैविंग, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB। हो गया प्रूफ? दो मेथड है क्वेश्चन। Sir, there is one more method. एक मिनट, लेट तान्या स्पीक फर्स्ट। अब तान्या बोलिए। सर आपने जो दोनों मेथड दिखाया सर, उसमें से एक्चुअली मैंने थोड़ा सा अलग किया सर, मैं बता सकती हूँ? हाँ प्लीज बताइए। सर मैंने किया AC इज इक्वल टू AD सर, क्योंकि वो सर्कल का रेडियस होता है, रेडियस है। हाँ सॉरी सर, रेडियस होता है। तो फिर हाँ। सर सेम दूसरे सर्कल में भी BC इज इक्वल टू BD हो गया, तो सेम उसका भी रेडियस होता है इसीलिए सर। तो फिर ठीक मैंने है। CD को ज्वाइन किया और CD इज इक्वल टू DC सर, क्योंकि वो कॉमन साइड होता है सर। तो ऑटोमेटिकली दोनों ट्रायंगल ACD और CBD सर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया सर। तो बाय CPCT एंगल नहीं हुए। एक मिनट तान्या बेटा, आपके मेथड में प्रॉब्लम ये है कि nowhere it is written that AC is equal to BC। ये जो दोनों सर्कल्स है ना, इन दोनों सर्कल्स का रेडियस इक्वल है ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। Read the question. The question is saying two circles with center A and B, but यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि two equal circles with center A and B। आपने जो प्रूफ किया ट्रायंगल ACD is equal to triangle BCD, the congruent to triangle BCD, the problem here was ये चीज तभी हो सकती थी जब आपका AC is equal to BC होता, but AC is not equal, but AC is not equal to BC। Tanya, I hope I am clear, but AC is not equal to BC। ठीक है ना? So this is a very common mistake that others should also know। What your friend was trying to say कि सर ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल BCD भी तो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। नहीं हो सकते, इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि आपको ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि AC is equal to BC। Please mind this। At least by SSS congruency criteria, the two cannot be congruent। हो सकता है कोई दूसरा क्राइटेरिया हो, that maybe we will
discover later on. But by SSS congruency criteria, the two triangles are not congruent. ठीक है? हाँ, somebody else was saying the method. कोई और कुछ और बताना? Yes sir. हाँ बताइए. Sir, quadrilateral ADBC forms a kite. So angle D will be equal to angle C. Very good. Very good. Now this is unique. This is really unique. Clapping for you. Very good. What is your name? Can you please tell me your name? Sir, Kevalya. Kevalya. Okay, my dear, thank you. Thanks for enlightening me also. I'm just erasing this and I will explain what he has told till now. आपके दोस्त ने क्या बोला सर? देखो, इसी को बोलते हैं कि हम लोग तो सर्किल और ट्रायंगल के बीच में घूम रहे थे. इस बच्चे ने वो चीज बताई जो हम लोग शायद भूल गए. This is A and this is B, this is C, this is D. I have to prove, ऐसे ही था ना? I have to prove ACB is equal to ADB. अब देखो बेटा ध्यान से, इस क्वाड्रिलेटरल की बात करो. इस क्वाड्रिलेटरल में ABCD में AC is equal to AD and BC is equal to BD. ऐसा क्वाड्रिलेटरल कुछ था जो हमने पढ़ा था. ऐसे इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को जहाँ पे एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? काइट. और काइट के अपोजिट एंगल्स, काइट में जो इक्वल साइड्स कंटेनिंग जो एंगल होता है वो इक्वल होता है. काइट का ये वाले जो एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं. बहुत आसान सी चीज है, प्रॉपर्टी है. नहीं याद आता है तो इस CD को ज्वाइन कर दो. यू विल अगेन रिच टू मेथड नंबर 1 ओनली. ये ज्वाइन कर दो. ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा. ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा. इसका मतलब ये हुआ बेटा. बट व्हाट ही हैज डन इज ही हैज straight away saved your 1 minute by writing the formula, by writing the deduction directly that in a kite the opposite angles will be equal. This is what he has done. Very good, my dear. Very good. So this is what I want to say. This is what I want to tell you, and this is what I want to tell you, my dear friends. My dear friends, this is what I want to tell you. That don't limit your knowledge, don't limit your thinking to your textbook. Try to go beyond the textbook. In none of the method, be it R.D. Sharma, be it R.S. Agrawal, be it NCERT or be it any book, ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किया होगा कि दिस इज करेक्ट. कहीं नहीं सॉल्व किया होगा. कहीं सॉल्व किया हुआ मिले तो मुझे बताओ. कहीं नहीं मिले. Everywhere what they will do is इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, बस खुश हो जाए. वेरी नाइस. आई रियली लव दिस बैच. चलो ये इसको छोड़ा भाई. हाँ ठीक है. So now we are left with only 3 minutes. So I will just wind up. We are not going to start anything today. I will just wind up. अभी तक जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें किसी को कोई डाउट हो या किसी और को किसी और चीज पे कोई डाउट हो, so he or she can ask. We are not going to start anything fresh today. We will just have the discussion of whatever we have read till now. We are not going to start anything fresh. सर इसके पहले एक थियरम था